Hello students, today we will start second chapter of history from trade to territory. The simple meaning of this chapter is the rise of the English East India Company. So before going to start this chapter, I want to tell you about how the Britishers came in your country and became the master of this country. So in search of sea routes toward the east, several people from the western countries like the British, French, Dutch and Portuguese started sea voyages. So sea route फाइंड करने के लिए बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज के ट्रेवलर्स, खासकर ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज ने समुद्री यात्राएं की एंड दे नेचुरली बिकेम राइवल ऑफ ईच अदर. इस तरीके से एक दूसरे के दुश्मन बन गए एंड इन दिस स्ट्रगल फॉर पावर Britain became victorious and transformed itself from a trading company to an imperialist nation that ruled India for nearly 200 years. So as a trading company they entered in our country and after some time they became the master of this country. They ruled in our country around 200 years. So the first topic of from your book is the European power in India, meaning East India Company comes in East. So now East India Company came to your country. They tried to establish themselves. So during that time, three more Western power also entered in your country like Portuguese, Dutch and French. So the European powers in India, first only the Portuguese. So Vasco da Gama, a Portuguese sailor, first discovered a sea route to India via the Cape of Good Hope in the year 1498 and arrived at Calicut, Kerala. So 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में जो है एंटर करिए कालीकट केरल की ओर से. So the Portuguese were the first to establish their political power in their country. इस तरीके से पोर्टुगीज पहले वेस्टर्न या ब्रिटिशर्स पहले यूरोपियन बने जो इंडिया में अपनी पावर जिन्होंने पॉलिटिकल पावर स्टेबल कर दी. Then the Dutch, other name is Netherlands and Holland. So the Dutch were the next to reach in India in the year 1595 and the Dutch East India Company was formed after a few years. सेकेंड नंबर पे डच आए जो 1595 में इंडिया में आए एंड इनका जो मेन कंट्रोल था स्पाइसेस में था और स्पेशली इंडोनेशिया से. सो लेटर दिस चीफ ट्रेडिंग सेंटर शिफ्टेड टू नागपट्टिनम द डच आल्सो स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन मैसूलीपट्टनम, कालीकट एंड सूरत. तो नागपट्टिनम से उसके बाद उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को शिफ्ट कर दिया और मैसूलीपट्टनम, कालीकट और सूरत की ओर चले गए. लेकिन उसके बाद डच का डोमिनेंस खत्म हो गया एंड द ब्रिटिशर्स डिफीटेड देम. देन द फ्रेंच टू ट्राई टू एंटर द कॉम्पिटिशन फॉर ट्रेड इन इंडिया. सो फ्रेंच आल्सो want to make their position strong in India. तो फ्रेंच भी चाहते थे कि वो भी अपनी पोजीशन को इंडिया में स्ट्रॉन्ग करें एंड दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज इन पौंडीचेरी, मद्रास एंड चंदरगांव इन बंगाल. तो इन्होंने भी अपनी कंपनियां इंडिया में स्टेब्लिश करी, खासकर पौंडीचेरी में, मद्रास और चंदरगांव बंगाल में. एंड द फ्रेंच हैड द कॉन्फ्रंट एंड कम्पीट विद द ब्रिटिश. और फ्रेंच को अपने को पावरफुल बनाने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ा एंड दिस रिजल्टेड इन द कर्नाटिक वॉर्स इन विच द फ्रेंच वर फाइनली डिफीटेड. इस तरीके से फ्रेंच का ब्रिटेन के साथ 3 वॉर हुए जिसको हम बोलते हैं कर्नाटिक वॉर. So all these European trading companies compete with each other to buy fine cotton and silk produced in India. So इस तरीके से जितनी भी आपकी ट्रेडिंग कंपनी सबका जो है इंडिया में पावर को होल्ड करने की कोशिश करी
लेकिन अंत में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 3 युद्ध हुए जिन्हें हम कर्नाटिक वॉर कहते हैं। सो द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, so therefore for nearly 20 years from 1744 to 1744 to 1763, 1744 to 73, so इतने साल तक, so now 73, this is 63. So around more than 20 years they struggle to one another. They fought in war, and the French and the English fought for the control of the trade and territories of India. और इंडिया में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, अपने पावरफुल प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करते रहे। एंड दीज वॉर्स आर कॉल्ड कर्नाटिक वॉर्स। इन्हीं को कर्नाटिक वॉर्स कहा जाता है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर which took place in the year 1746 and ended in the year 1748. So in the year 1748 a war broke out in Europe between France and England. तो 1742 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक वॉर इंग्लैंड में हुआ and the war also spread to India. यही वॉर इंडिया में फैल गया where the British and the French companies clashed with each other. जहाँ पे फ्रेंच कंपनीज और ब्रिटिश कंपनीज आपस में लड़ने लगी। When the war ended in Europe in the year 1748, it ended in India too. और जैसे ब्रिटेन में या इंग्लैंड में वॉर खत्म हुआ 1748 में, वैसे इंडिया में भी खत्म हो गया। रिजल्ट क्या रहा? Neither side made any territory gains. किसी भी साइड को टेरिटरी का या अपनी लैंड बनाने का मौका नहीं मिला। But the rivalry between the two powers over trade and territory continued. Rivalry, दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। The war exposed the weakness of the rulers of South India, and this war exposed, मतलब उन्होंने साउथ इंडिया के रूलरों की कमजोरियों को लोगों के सामने लाया। It was shameful that the Nawab of Carnatic had failed to stop a war in his own territory. सबसे शर्मनाक बात क्या थी कि जो नवाब थे कर्नाटक के, वो अपने वहां पे लड़ाई नहीं रोक पाए। और जो अगला पॉइंट था वो ड्यूप्लेक्स, द गवर्नर ऑफ द फ्रांस कंपनी वाज वेरी कैपेबल। ड्यूप्लेक्स था जो फ्रांस का गवर्नर था, बहुत कैपेबल था एंड फार साइट, वो दूर दृष्टि थी उसकी, बहुत दूर दूर तक देख सकता था। He decided to take full advantage of the unstable political conditions of South India and increase French political influence in the south. तो दूरदृष्टा था, तो उसने जो क्या किया, जो साउथ के रूलर्स की कमजोरी को अपना हथियार बनाया और वहां पे अपने आप को या अपनी पावर को, अपनी फ्रेंच की पावर को स्टेबल करना शुरू किया। Then second Carnatic War it was started from in the year 1749 and ended in the year 1754. So in year 1748 when rulers of both Carnatic and Hyderabad died, जो कर्नाटक और हैदराबाद के जब रूलर 1748 दोनों मर गए, Dupleix decided to intervene in the wars of succession that had started both in Carnatic and Hyderabad and set up puppet ruler in these two states who would serve in the interest of the France. तो इस दौरान जब दोनों जगहों के रूलर मर गए, डुप्लेक्स यहाँ पे एंटर कर गया और उसने वहां पे पपेट रूलर बना दी। पपेट रूलर मींस जो उनको ही फॉलो करे, उनके इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को ही फॉलो करे। तो रिजल्ट क्या रहा इस वॉर का? द फ्रेंच गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डिफीट, साइन ऑफ पीस ट्रीटी। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपने पपेट रूलर बनाए, सही था, और साथ में जो द ब्रिटिश टू हैड द एम्बिशन एंड वुड नॉट अलाउ द फ्रेंच टू गेट एन अपर हैंड। और दूसरी ब्रिटेन थी, वो नहीं चाहती कि फ्रांस उनसे आगे निकले, तो उन्होंने भी अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, a young clerk in the British East India Company, the British managed to defeat the French finally and made Muhammad Ali the Nawab of Carnatic their nominee.
तो उसके बाद ब्रिटेन ने जो है मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया और उन्होंने फ्रांस को हरा दिया। फिर जो है फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर डिफीट और एक शांति वार्ता हुई। They also accepted the British demand that Dupleix must be sent back to France. तो उन्होंने भी डुप्लेक्स को ब्रिटेन की डिमांड पर वापस फ्रांस भेजने का निश्चय किया। This was a big blow to the future of the French company in India. और इसी के साथ डुप्लेक्स के वापस फ्रांस जाने के साथ ही फ्रांस की कंपनी का इंडिया में वर्चस्व खत्म होना शुरू हो गया। Third Carnatic War. It was started in the year 1757 and ended in the year 1762. So the temporary peace between the British and the French company ended in India. When another war broke out between them in Europe. अब जो पीस ट्रीटी थी, जो फ्रांस के बीच में और ब्रिटेन के बीच में हुई थी, जैसे ही इंग्लैंड में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर शुरू हुआ, वही पीस ट्रीटी खत्म हो गई। इंडिया में भी उन दोनों के बीच वॉर शुरू होना शुरू हो गया। So at the very beginning of the war, the English managed to gain control over Bengal after the victory in the Battle of Plassey. So 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो शुरू में तो ब्रिटेन को उसका लाभ हुआ। Now the British could use the rich resources of Bengal to overpower the French. तो ब्रिटेन ने क्या किया कि फ्रांस के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको अपने अधिकार में लाना शुरू कर दिया। एंड द फ्रेंच ऑन द अदर हैंड वर हैंडीकैप्ड ड्यू टू कांस्टेंट शॉर्टेज ऑफ फंड्स। और दूसरी ओर फ्रांस हैंडीकैप होने लगी, दिवालिया होने लगी, क्योंकि उनके पास फंड नहीं था। फाइनली द फ्रेंच वर डिफीटेड इन द ईयर 1760। द वॉर इन इंडिया एंडेड विद द एंड ऑफ द वॉर इन यूरोप इन 1763। जैसे ही यूरोप में 1763 में वॉर खत्म हुआ, तो इंडिया में भी वॉर खत्म हुआ। इसका रिजल्ट आया, द थर्ड कर्नाटिक वॉर shattered French dreams of building their empires. तो थर्ड कर्नाटिक वॉर ने फ्रांस के सपने को चकनाचूर कर दिया। Pondicherry and other French settlements were returned to the French, but they could not build forts or station troops in these territories. तो फ्रांस को पौंडीचेरी और दूसरे सेटल्ड एरिया दे दिए, लेकिन उनको ये बोला गया कि वो न वहाँ कोई किला बना सकते, नहीं अपनी आर्मी वहाँ रख सकते। They could serve only as center of trade and had to live in India under the protection of the British. और वहाँ क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं और जब तक ब्रिटिश चाहे तब तक रह सकते हैं। The English now established their political influence over Carnatic. और इस तरीके से ब्रिटेन ने पूरे कर्नाटक में अपना पॉलिटिक्स को स्टेब्लिश कर दिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को स्टेबल कर दिया, and freed of all European rivals. They could now get set for the task of conquering India. तो इस तरीके से उनके जितने भी ब्रिटिश राइवल्स थे, ब्रिटिश राइवल्स ये वैसे यूरोपियन राइवल्स थे, नॉट ब्रिटिश राइवल्स, उनके जितने भी यूरोपियन राइवल्स थे उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया। और इस तरीके से अब ब्रिटेन जो है इंडिया को कॉन्क्वेयर जीतने के लिए आगे बढ़ गया। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू व्हाट इज the actual story of that. Clear? Till then, thank you.